نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ مانگا تھا، فرمائشی معجزہ مانگا تھا کہ اگر آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ضروری ہی دیکھنا ہے تو ہم کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ پھر یہ ہوگا کہ بنا دینے کے بعد جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کی ہلاکت اور بربادی ہوگی، عذاب آئے گا ان پر۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو فرمائشی معجزہ مانگتا ہے اگر وہ مان جائے تو بہتر، نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ اور فرمائشی معجزات کا تذکرہ کیا۔ مشرکین مکہ کا ایک اور فرمائشی معجزہ یہ تھا کہ جناب لولا انزل علینا الملائکۃ، لولا انزل علینا الملائکۃ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ فرشتے آسمان سے آئیں اور وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ جناب یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لوگوں کے نام ایک خط ہے، آپ ان کی بات مانیں۔ فرشتے آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، تب ہم مانیں گے۔ دوسرا ایک اور فرمائشی معجزہ یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا جو پہلے دنیا سے چلے گئے، اگر تم سچے ہو تو ان کو لا کر دکھاؤ، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ولو اور اگر، اننا نزلنا بے شک ہم اتار دیں، الیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، ان پر آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ ان کی خواہش کے مطابق ان سے باتیں کریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور دوسری ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا زندہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف باپ دادا نہیں، باقی جتنے مردے ہیں وہ بھی سب کے سب زندہ کر دیے جائیں۔ وَكَلَّمَهُمْ، اور وہ سب ان سے باتیں کریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، موتا کہتے ہیں مردوں، مردے ان سے باتیں کریں۔
वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन, और हम जिंदा कर दें इनके सामने हर चीज़ को, अलैहिम इन पर, कुल्ल शैइन क़ुबुला, क़ुबुल कहते हैं सामने को, इनके रूबरू, इनके सामने हर चीज़ को हम जिंदा कर दें। इंसान भी और बाकी जितने आज तक मरे हैं सब के सब जानदार सब जिंदा होकर खड़े हो जाएं। इन्होंने तो एक चीज़ की फरमाइश की, लो हम लाखों चीज़ें इनकी पूरी किए देते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये लोग कोहे सफ़ा को सोने का बनाकर कह रहे हैं कि हम ईमान ले आएंगे। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोहे सफ़ा सोने की बन जाए तब भी ईमान नहीं लाएंगे। दूसरी इनकी एक और फरमाइश है कि आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो जाएं। फरमाया इन पर फरिश्ते नाज़िल हो जाएं तब भी ईमान नहीं लाएंगे। मुर्दे कब्रों से उठकर इनसे बातें करनी शुरू कर दें, ये इतना बड़ा मौजूदा देख कर तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अब तक जितनी चीज़ें दुनिया से चली गईं सब चीज़ों को इनके सामने ज़िंदा करके खड़ा कर दिया जाए तब भी ये लोग मा कानू लियुमिनू, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये अल्लाह ताला ने फ़ैसला सुना दिया। देखो जो फरिश्तों का नज़ूल है उसकी दो तरीके से हो सकता है नज़ूल, दो सूरतें हो सकती हैं उसकी। एक सूरत तो ये है कि फ़रिश्ते अपनी असली हालत में नाज़िल हों, और इनको देखने की ताकत ही नहीं है कि फ़रिश्तों को असली हालत में देख सकें। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी असली हालत में सिर्फ 2 मरतबा देखा। तो आम आदमी के पास कहाँ ताकत है कि वो असली हालत में फ़रिश्तों को देख पाएंगे। और अगर फ़रिश्ते आ जाते हैं इंसानी शक्ल में तो ये मानेंगे नहीं कि तुम फरिश्ते हो, तुम भी इंसान ही हो। तो ये बिला वजह का एक झगड़ा है, ईमान ना लाने का एक बहाना है, जिसका फ़ैसला मेरे अल्लाह ने सुना दिया। मा कानू लियुमिनू, ये ईमान नहीं लाएंगे, इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह खुद चाहे तो फिर ईमान ले आएंगे। जब अल्लाह चाहे ईमान ले आएंगे, और अगर अल्लाह इनके वो इख्तियार दे दें, अल्लाह अपनी चाहत शामिल ना करें, फिर नहीं मान लाएं, जो कुफर पर डटे रहें। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, अक्सर इनमें से जाहिल हैं, अक्सर इनमें जाहिल हैं। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन, यहाँ से अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 40 साल ज़िंदगी मक्का मुकरमा में गुजार चुके, आपको इन्होंने सादिक का लक़ब अता फ़रमाया, इन्होंने आपको अमीन का लक़ब अता फ़रमाया, बड़े बड़े अलक़ाबात इन्होंने आपको दिए। लेकिन जब 40 साल उम्र गुज़रने के बाद अल्लाह ने नबुव्वत अता फ़रमाई, आपने तबलीग का आगाज़ फ़रमाया, वही लोग जो सादिक और अमीन कहने वाले थे उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने तरह तरह के बोल ज़ुबान से बकना शुरू कर दिए, दुश्मनी पर उतर आए। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिक जअलना, इसी तरह हमने बनाया लिकुल्लि नबिय्यिन, हर नबी के लिए अदुव्वन, दुश्मन। हर नबी के दुश्मन दुनिया में गुजरे हैं, इसलिए मेरे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों कि आपके इलाके के लोग, आपके ख़ानदान के लोग आपके दुश्मन बन गए, आप परेशान ना हों। हर नबी के दुश्मन दुनिया में गुजरे। दुश्मन 2 किस्म के होते हैं, दोनों किस्म का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, शयातीनल इंसी वल जिन्नी, 2 किस्म के लोग अंबिया के दुश्मन गुजरे हैं। एक इंसानी शैतान है, शयातीनल इंसी, इंसानी शयातीन, इंसानी शैतान, वल जिन्नी, और जिन्नाती शैतान, जिन्नों में शैतान और इंसानों में शैतान। जिन्नात के अंदर तो मादा ही शर का है, वहाँ पर तो शैतानियत ही शैतानियत है, वहाँ से खैर की तवक्को कम है।
लेकिन इंसानों में शैतान कौन? जिन्नात में तो इबलीस की औलाद, शैतान ही शैतान। इंसानों में शैतान कौन? दो खानदानों के दरमियान लड़ाई करवाने वाला इंसानी शैतान है, इंसान के रूप में शैतान है। सुलह हो रही है और उस सुलह को तोड़वा कर वहाँ पे दुश्मनी को भड़काने वाला इंसानी रूप में शैतान है। लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाने वाला ये इंसान नहीं, इंसानी रूप में शैतान है। ये है इंसानी शैतान। जो भी दुनिया के अंदर इंसानों को सताते हैं, इंसानों को परेशान करते हैं, ये सब के सब लोग इंसानी शैतान हैं। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, यूही का लफ्ज़ी माना होता है तो वही करते हैं, लेकिन यहाँ माना है सिखलाते हैं। बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे को। ज़ुख़रुफ़ कहते हैं मुलम्मा साजी वाली, अलकौल बातें, मुलम्मा साजी वाली बातें, चोपड़ी हुई बातें, खूबसूरत की हुई बातें, ये लोगों को सिखाते हैं। गुरूरा, धोखा देने के लिए। ज़ाहिरी तौर पर बड़े खैर खा नज़र आएंगे। देखो, आप अगर यूं कर देंगे फ़लाँ रिश्तेदार से बच जाएंगे, आप अगर यूं कर देंगे फ़लाँ मौके पे उससे यूं बच जाएंगे, बड़े खैर खा बन के नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुश्मनी बना रहे हैं। दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी की दीवार खड़ी कर रहे हैं। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, ये सिखलाते हैं एक दूसरे को। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, मुलम्मा साजी वाली बातें धोखा देने के लिए। वलौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहता, मा फ़अलूहु, ये लोग ये काम ना कर सकते। अल्लाह की चाहत के मुकाबले में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं की, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। दुनिया में रहते हुए किसी को मजबूर नहीं किया, इख्तियार दे दिया, जो चाहो करो। ये दुनिया है, ये पेपर करने की जगह है। यहाँ पेपर के ऊपर बैठा हुआ तालिब इल्म जो चाहे बना ले। एक दफ़ा एक तालिब इल्म मुझे कहने लगा, मैंने पेपर के अंदर 10वीं क्लास का पेपर देने के लिए गया, मैंने वहाँ बसें बना दी, मैंने ट्रक बना के लाइटें लगा दी, मैंने वहाँ रूट बना दिए। बसें बना दो तुम्हारी मर्ज़ी, ट्रक बना दो तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिख दो तुम्हारी मर्ज़ी, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि पेपर देते हुए कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये दुनिया का निज़ाम है, ये दुनिया का जहान है, जहाँ मेरा अल्लाह इख्तियार दे चुका, मजबूर नहीं कर रहा। जो चाहो कर लो, अपने नामे अमाल में जो चाहो लिखवा लो, तुम्हारी मर्ज़ी। इसलिए फरमा दिया वलौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहता, मा फ़अलूहु, ये ऐसा काम ना कर सकते। ना शैतानी इंसान होते, ना शैतानी जिन्नात होते, किसी के पास पावर ना होती कि किसी को गुमराह कर सकता, धोखा दे सकता, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इख्तियार दे दिया, जाओ जो चाहो करो। फ़ज़रहुम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़रहुम, छोड़ दो इनको। वमा यफ्तरून, जो ये इफ्तरा बांध रहे हैं, ये जाने और इनका झूठ जाने, फिर हमारे दरबार में आएंगे तो हम इनको पकड़ेंगे। बड़ी परेशान कौन बात थी कि मक्का की बस्ती वाले दुश्मन बन गए। जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे, आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, पहली वही का नुज़ूल हुआ, आप घबरा गए, घर तशरीफ़ ले गए। जब आपकी तबीयत कुछ संभली, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर अपने
भाई, इनके चचा ज़ाद भाई थे वर्का बिन नौफल, बाज़ों में है को पुप्पो ज़ाद भाई थे। वो आलिम थे पिछली आसमानी किताबों के, उनके पास लेकर गई कि इनके हालात देखो, इनको क्या मसला हुआ, तबीयत ठीक नहीं, क्या मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कैफियत सुनने के बाद वर्का बिन नौफल कहने लगा, मुबारक हो ऐ खदीजा, तुझे भी मुबारक हो, ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह ने इनके ऊपर नबूवत का ताज सजा दिया है, ये आने वाला हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का मुबारक फरिश्ता है। सुबहान अल्लाह। आगे वर्का बिन नौफल ने एक बात की, कहने लगा मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया, मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं, काश के मैं उस वक़्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपकी दुश्मन बन जाती और आपको अपने इस शहर से निकाल दिया जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, अर्ज़ किया, पूछा कि ये कैसे हो सकता है, आज ये सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यही मेरे दुश्मन बन जाएंगे। वर्का बिन नौफल कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ आपके दुश्मन नहीं बनेंगे बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीछे जितनी भी हिस्ट्री और तारीख मौजूद है, जब भी उन्होंने अल्लाह की दावत और तबलीग का ऐलान किया तो कौम वाले दुश्मन बन गए, इसलिए आपकी कौम भी आपके दुश्मन बन जाएगी। और यहाँ तक हमारी किताबों में ये बात लिखी है कि आपको इस शहर से निकाल दिया जाएगा, काश कि मैं उस वक़्त ज़िंदा होता और आपकी मदद कर पाता। 3 दिन के बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करती हैं, हुजूर मेरे भाई वर्का बिन नौफल का क्या हाल है, आप उसको किस हालत में देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा ठीक था, मुझे अल्लाह ने दिखाया, सफ़ेद खूबसूरत लिबास के अंदर मैंने उसको देखा और मेरा दिल ये कह रहा है कि वो अच्छी हालत में है, अल्लाह ने उसको पास कर दिया है। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया के अंदर छूट दे रखी। झूठे लोग, कहानियाँ बनाने वाले लोग, लोगों को धोखा देने वाले, फरेब देने वाले लोग, मुलम्मा साजी करने वाले लोग, अपनी लिपड़ी चोपड़ी लोगों को सुनाकर धोखे में डालने वाले लोग सुनाते रहते हैं। वाली तस्गा, अल्लाह उनको छूट दे रहे हैं। वाली तस्गा इसलिए कि ताकि ये माइल हो जाएं इलैहि इसकी तरफ, अफ़इदतु दिल, अल्लज़ीना उन लोगों के, ला युमिनूना बिल आखिरा जो आखरत पर ईमान नहीं लाते, जो आखरत पर ईमान नहीं लाते, उन लोगों के दिल इनकी तरफ माइल हो जाएं। जिसका दिल इनकी तरफ माइल हो गया बर्बाद हो गया। बर्बाद वही होगा जिसका आखरत पर यकीन नहीं होगा। जिसका आखरत पर यकीन होगा वो बर्बादी से बच जाएगा। वलियरज़ऊहु ताकि वो इसको पसंद कर लें। वलियक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून ताकि वो बुरे काम किए जाएं जो कुछ मुक्तरिफून बुरे काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं यही आमाल दुनिया के अंदर किए चले जाएं और इसी हालत में इनका इंतकाल हो जाए और फिर इनको पकड़ा जाए और फिर अल्लाह के दरबार में इनको हाज़िर कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ढील देते रहते हैं और बंदा जो समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्ज़ी करता रहूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। इसके बाद अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाले एक वाक़ये का तज़किरा फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, लोग पहले सादिक़ और अमीन कह रहे हैं, लेकिन जब ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं तो नबी मानने के लिए तैयार नहीं। नऊज़ बिल्लाह कहते हैं जी आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह का कुरान मानने के लिए तैयार नहीं, दीन इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन कहने लगे मुशरिकीन मक्का के सरदार
कि चलो ठीक है, हम आपकी नबूवत मानने के लिए तैयार हैं, हम इसकी तहकीक करना चाहते हैं, हम इसके बारे में फ़ैसला करवाना चाहते हैं। मुशरिकीन मक्का में एक बहुत बड़ा सरदार था, मालदार था, जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। ये पंचायत वाला, परे पंचायत वाला बंदा था। लोग इसके पास जाते थे अपने फ़ैसले करवाने के लिए। मक्के के सरदार कहने लगे कि हम आपका फ़ैसला वलीद बिन मुगीरा से करवाएंगे। उनके सामने सारी सूरत हाल रख कर हम उनसे पूछेंगे, बताओ ये नबी हैं या नहीं, कुरान सच्ची किताब है या नहीं, दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है या नहीं। अगर वो कह देगा तो हम उसके फ़ैसले को तस्लीम कर लेंगे। एक कौल। ये वलीद बिन मुगीरा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं। दूसरा कौल, ताइफ का एक बहुत बड़ा चौधरी था, सरदार था, जिसका नाम था मसऊद। कहने लगे कि हम उसके पास फ़ैसला लेकर जाते हैं आपका, वहाँ से हम पूछते हैं, अगर वो कह देंगे हम मान जाएंगे। तीसरा कौल, हम यहूदी और नसरानी उलमा के पास आपका फ़ैसला लेकर जाते हैं, वो पिछली किताबों के आलिम हैं, उन्होंने निशानियाँ देखी होंगी, आखिरी नबी की निशानियाँ क्या क्या हैं, हम उनसे पूछेंगे। अगर वो आपके बारे में फ़ैसला कर देंगे तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। अल्लाह ने कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तगी, क्या अल्लाह के अलावा अब्तगी मैं चाहता हूँ, हाकमन फ़ैसला, क्या अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ैसला करवाऊँ, किसी और को हकम मान लो। अल्लाह अपने नबी को फरमा रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दे रहे हैं, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तगी, क्या अल्लाह के अलावा अब्तगी मैं बना लूँ हाकमन किसी को मुनसफ़, वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, हालांकि उसी अल्लाह ने नाज़िल की इलैकुम तुम्हारी तरफ किताब, किताब मुफ़स्सला वाज़े। यहाँ से अल्लाह ताला किताब कुरान मजीद की चंद खसूसियात बयान फरमा रहे हैं। कुरान पाक की चंद खसूसियात, इनमें से सबसे पहली खसूसियत कुरान पाक की, ये कुरान पाक अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है। दूसरी खसूसियत, कुरान पाक के पास एजाज़ मौजूद है। एजाज़ का माना आजिज़ कर देने वाले। बड़े से बड़े लोग इतनी दुश्मनी रखने के बावजूद उनके पास ताकत नहीं थी कि कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत या एक छोटी सी आयत का ही मुकाबला करके उसका बदल बना के दिखा सकें, कुछ नहीं कर सके। और तीसरी खसूसियत कुरान पाक की ये है कि कुरान पाक, इसके अंदर अल्लाह पाक ने तमाम उसूली मज़ामीन और कवानीन बहुत वजाहत के साथ बयान फरमा दिए। चौथी खसूसियत ये है कि अहले किताब, खा वो यहूदी हों नसरानी हों, वो जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, अगरचे मानते नहीं लेकिन जानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये अल्लाह के नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बेटे के पहचानने में किसी को कोई गलती नहीं होती कि ये बेटा मेरा है या किसी का, इसी तरह इनको कोई गलती नहीं हो सकती कि ये अल्लाह के नबी हैं या कोई और है। और एक सिफत इस कुरान पाक की ये है, खुसूसियत सिफ़ात कुरान पाक की एक सिफत ये है कि ये कुरान पाक, इसके अंदर अदल है, सिद्क है, सच्चा है कुरान पाक। सच्चाई किस एतबार से कुरान पाक के अंदर, कि इसके अंदर जो मज़ामीन पिछले वाक़यात बयान किए गए, या जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया गया, मैदान हशर का तज़किरा किया गया, वो सब के सब तज़किरे सिदक पर मबनी हैं, सच्चाई पर मबनी हैं।
اور عدل بھی ہے قرآن پاک کے اندر۔ عدل کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے کہ یہ قرآن پاک جتنے بھی لوگ جن کے بارے میں قرآن پاک فیصلہ کر دے، کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو قرآن پاک اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ تو قرآن پاک عدل اور انصاف کی کتاب بھی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ میں بنا لوں حکماً کسی کو حکم منصف، وہو الذی انزل، حالانکہ اسی اللہ نے اتارا الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب کو مفصلاً واضح، والذین آتیناہم الکتاب، وہی اللہ جس نے دی ان کو کتاب، یعنی اہل کتاب کو، یہودی ہو نصرانی ہو، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ کتاب قرآن مجید منزل من ربک، نازل شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، فلا تکونن من الممترین، نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے، وتمت، اور پوری کر دی، کلمت ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، صدقا وعدلا، سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی پوری بات بیان کرتا ہے، سچائی بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، یہ آخری صفت قرآن پاک کی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے، جاننے والی بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر لوگوں کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، تو آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہ بات تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، لیکن پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے، کبھی اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا۔ اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے کہ اکثر لوگ ادھر ہیں تو انہی کی اطاعت کر لو، تو پھر تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر لوگوں کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، تو یہ بہکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، الا الظن، مگر خیالات کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر اٹکل دوڑاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، کون بہکتا ہوا اس کے راستے سے، اس کے راستے سے کون بہک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ راستے سے بھٹک کون رہا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ راستے سے بھٹک کون گیا ہے، ہدایت پر کون نہیں ہے، اور ہدایت پر کون ہے کون نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔